Alright, good morning everyone. Welcome back to another class of human skeletal system. So we are discussing lower limbs in this particular class. So pertaining to lower limb, we will talk about two major sections of the bone, two major sections under lower limbs. Okay? So technically it is the pelvic girdle, and then you will have your bones of the lower limbs. ठीक है. So pelvic girdle जो है, pelvic girdle is basically which is making up, it makes up your pelvic cavity and your it encloses it, or it makes the pelvic cavity, or it encloses the pelvic cavity, and this pelvic cavity is enclosed by two bones. So it is enclosed by two innominate bones. Innominate, ये वर्ड का मतलब देख लो. Innominate, nominate refers to जिसको हम नेम कर सकते हैं, right? Innominate is something which cannot be named, so it, in other words, it has no names. इसको कोई नाम दिया नहीं है. And this innominate bone is made up of, it is made up of three fused bones. Three fused bones, namely ilium, ischium, and pubis. Ilium, ischium, and pubis, right? So we'll talk about that. We'll see this structure and all the other specifications with these structures. We'll see it in the in a while, okay, in that three-dimensional diagram. Now talking about the bones of the lower limbs, I told you bones of the lower limbs will account for 60 bones, and pelvic girdle is accounting for 2 bones only, right? So lower limbs के जो bones है, they are specifically, firstly you have your femur, the longest bone, longest and the strongest bone. So femur is 2 in number. Then you have your upper leg का upper thigh bone है, technically upper leg thigh bone, okay, upper part of the leg. Similarly you have tibia and fibula. Tibia and fibula, ये दो lower leg मतलब calf bones है. So I will write it here. I will write it here. Another second bone जो है हमारा, that is tibia and fibula. Tibia and fibula accounts for, ये दो bone है तो they account for 4 bones. Then you have your patella. इन दोनों के बीच में मतलब femur और tibia fibula के बीच में you have another bone referred to as patella. And then you will have tarsals. Then you will have metatarsals, and lastly phalanges. So the numbers are absolutely very similar to what we studied in the upper limb. Patella is also 2 in number. Tarsals here, difference यही है बेटा कि tarsals here are 7 in each legs, so they account for 14 tarsals. Metatarsals are the same, 5 in each leg, so they account 10 tarsals, 10 metatarsals. And phalanges are again 14 in number, so they account for 28 phalanges, right? Now let's take up the another name for all of these bones. Femur is also referred to as your thigh bone. Femur is your thigh bone, longest and the strongest bone, right? Tibia and fibula are also referred to as the shank bones, or in other words the calf bones. ठीक है, shank bone इसी को हम बोलते हैं shaft bone, right?
The next one is your patella. Patella refers to your kneecap. It is the kneecap, a type of sesamoid bone. Tarsals are the bones of your ankle. Bones of your ankle. Metatarsals are the bones of your sole, and phalanges are the bones of your toes. Right? So quickly, let's go ahead and see these bones, and then whatever extra points with respect to these bones, we will see it in that particular diagram. Right? So now what you can see here is the appendicular skeleton. वापस इस कंकाल आदमी को घुमाते हैं, या आदमी ही है, क्योंकि हम लोग अभी वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन. ठीक है, तो ये आदमी का ही स्केलेटन है. वील ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम. इज दैट राइट? ओके, सो ये कंकाल आदमी घूम चुका है. वी डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अपर लिम्ब बोन्स. वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लोअर पार्ट. राइट? सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द बोन्स ऑफ द पेल्विस. ठीक है, बोन्स ऑफ द पेल्विस. बाकी सबको अभी के लिए मैं हाइड करता हूँ, फेड कर लेते हैं हम, सो दैट वी आर एबल टू सी द अदर बोन्स फॉर नाउ, एंड देन वी विल, व्हेन वी हैव टू लेबल देम, वी विल हाइड देम ऑल. ठीक है, सो व्हाट यू कैन सी हियर, दिस पर्टिकुलर दीज टू, दिस वन. So what you can see here, this is the pelvic cavity. ये open cavity जो है, that is your pelvic cavity, and this pelvic cavity has your reproductive and your urinary system. ठीक है, it is the pelvic cavity enclosing the reproductive and the urinary system. Is that right? So pelvic cavity is made up of these two bones, technically these two innominate bones, and also the sacrum. Sacrum also plays an important role with respect to this. Okay, so now let's see the pelvic cavity. Look at this circular cavity which you can see here. Okay, this circular cavity which you can see here, which is technically, since it is a male, तो male की जो pelvic cavity है comparatively छोटी होती है बेटा, because female has to bear a child, so the pelvic cavity is also comparatively wider. Right? That is an adaptation after puberty. The hips of that particular lady becomes widened or broadened, for that particular matter, to encompass the larger space for the pelvic cavity. Is that right? So that pelvic cavity is made up of your two innominate bones, and the sacrum and coccyx also forms an extension. That's it. Right? So now we have to talk about only these two bones, that is the innominate bones. बाकी सबको अभी हम हाइड करते हैं या फेड करते हैं. दिस इज ओनली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोन. ठीक है, सो लेट्स टेक अप okay. Now when you look at this, we'll have to first label these structures. Okay, अब मैं दोनों को एक साथ नहीं रख पा रहा हूँ बेटा, but we'll try to fade them and we'll try to observe the others also. ठीक है, so मैं दोनों को एक साथ नहीं, we'll have to take up only one particular diagram here. ठीक है, so now what you can see here, a long crest like structure. Let us go ahead and label them, and then we'll label it singly also. ओके, ठीक है, अब फिलहाल के लिए we'll come back to this, we'll label them and we'll come back to this particular diagram once again. Right? So as you can see here, this is the left innominate bone, which is made up of three fused structures, three fused bones. ठीक है, so let's quickly label them.
दिस पर्टिकुलर बोन, ये जो ग्रीन्ड बोन है, दैट इज योर इलियम. ओके, इलियम, राइट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, ये पीछे से जो बोन आ रहा है, दिस रीजन, ओके, दिस बोन यहाँ तक, ये जो बोन है दैट इज योर इस्चियम. और ये सामने से जो बोन आ रहा है दैट इज योर प्यूबिस. प्यूबिस फॉर्म्स pubic symphysis with another pubic bone, right? Okay, this is the articulating surface for sacrum, articulating facet for sacrum. आछे, ठीक है. Now some things which we need to understand here. You can see a small notch like structure here, ठीक है. These notch like structure is called as greater sciatic notch, greater sciatic notch, ठीक है. And this is referred to as the lesser sciatic notch, lesser sciatic notch. Now, what do you mean by sciatic notch? The sciatic nerve is the thickest nerve, one of the most important nerve, ठीक है. एंड आपने ये डिजीज सुना होगा साइटिका. साइटिका अगर देर इज एन इन्फ्लेमेशन विद रिस्पेक्ट टू द साइटिक नर्व, ठीक है. तो साइटिक नर्व अगर इन्फ्लेम्ड है तो आपको बैक पेन होगा और आपको कमर में दर्द होगी, लेग्स पेन होगा, बिकॉज दैट इज़ वन नर्व विच पासिस थ्रू दिस एरिया. आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस डायग्राम, आई विल शो इट टू यू इन द अदर एनिमेशन. ओके, आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस डायग्राम, बट आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से आपका नर्व पास होता है, इसलिए इसको ग्रेटर साइटिक नर्व बोला है बेटा, ठीक है. माई मिस्टेक, ग्रेटर साइटिक नॉच बोला है, और फिर वो नर्व ऐसे पास होता है, समझी गयो. सो अगेन आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस डायग्राम. ओके, so greater sciatic notch and lesser sciatic notch, this is for the passage of the sciatic nerve. Sciatic nerve is the thickest nerve of your body. Cool. सो इस्चियम पाछड़ इस्चियम छे और सामने की तरफ इलियम है, ठीक है. अब ये जो गोल सा इलियम का जो क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द इलियक क्रेस्ट. इलियक क्रेस्ट, iliac crest is the favorite spot or area for isolation or extraction of the bone marrow, right? Rather than puncturing or getting the bone marrow from the vertebral column or from the vertebrae, it is convenient and easier to get the bone marrow from the iliac crest, right? And this iliac crest also encloses a small cavity, a small depression for that particular matter, and this depression is called as iliac fossa, right? It is this iliac fossa which absolutely makes up room for, or makes up place for transplanted kidney, right? So they don't chop off your already present kidney, existing non-functional kidney को वो निकालते नहीं है. Rather than that, they implant a new kidney in this iliac fossa. Is that right? Okay, and then they will connect the ureter to the urinary bladder directly, and the other blood vessels, renal blood vessels, renal artery और renal vein को वो directly यहाँ पे connect कर देते हैं. So technically they are making a small bypass on that particular level, right? So again I told you I don't want to spoil this diagram, because if you will require the notes I might give you this diagram only, ठीक है. So we'll come back, I'll show it to you in that animation as well. All right, so this is your iliac fossa for that matter, right? Now let's go back to that animation. ये save कर लेते हैं अभी के लिए, and let's go back to this animation and let's try and see what are those structures, ठीक है. Now look at this. Now this is the cavity which I was talking about. This is your ilium. जो green region है वो ilium है.
ये जो आपका पीछे से जो इतना रीजन मैंने आपको बताया था, दैट इज योर इस्चियम, ये दिख रहा है आपको, दैट इज योर इस्चियम, ओके। एंड ये सामने वाला जो रीजन है बेटा, दैट इज योर प्यूबिस, ठीक है। जो प्यूबिस जो है यहाँ पे दूसरे प्यूबिस के साथ, प्यूबिस दूसरे प्यूबिस के साथ, ओके, हियर दे विल टेक्निकली फॉर्म दी, वन सेकेंड लेट मी शो इट टू यू, हियर देयर विल बी वाइट फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो यहाँ पे फॉर्म करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, राइट। सो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, during the delivery of the child, this pubic symphysis is relaxed under the influence of a hormone called as relaxin, produced by the placenta of the female, right? Now let's come back to one more, यहाँ पे आपको एक cavity दिख रही है, ये जो cavity है, this foramen is referred to as the obturator foramen, obturator foramen. Now this obturator foramen is the foramen through which the nerves, obturator foramen is the foramen through which the nerves, blood vessels, lymph vessels, all of them they pass, ठीक है। सो दैट फोरामेन, अगर ये फोरामेन आपको हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ मेल एंड फीमेल बोन, दिस इज अ मेल skeleton, I told you on that level, right? This is your iliac crest, again labeling it iliac crest, this is your iliac fossa, right? एंड लेट्स गो बैक एंड सी दी साइटिक नॉच, जहाँ से साइटिक नर्व पास होता है। सो ये है आपका साइटिक नर्व, ग्रेटर साइटिक नर्व एंड लेसर साइटिक नॉच, ग्रेटर साइटिक नॉच, दिस वन इज द ग्रेटर साइटिक नॉच, एंड दिस इज द लेसर साइटिक नॉच। तो ये साइटिक नॉच यहाँ से निकलेगा, यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से निकलेगा और आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से बाहर निकलेगा और आपके पैर तक जाएगा। इसलिए अगर साइटिक नर्व का इन्फ्लेमेशन है तो यू विल एक्सपीरियंस बैक पेन, यू विल एक्सपीरियंस पेन इन दी हिप्स, यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस पेन इन दी लेग्स, ठीक है। सो आपने ये सुना रहेगा, पेरेंट्स साइटिका ये प्रॉब्लम से कंप्लेन करते हैं ऑन दैट लेवल, इज दैट राइट? So I told you these are independent, it were three independent bones, but now they are fused, you can't make up differences। वो तो अभी यहाँ पे अपन को ग्रीन आउट करके दिया है इसलिए हम differences समझ पा रहे हैं, but on that level you can't draw a margin between these three bones, is that right? So this is your ilium, this is your ischium and this is your pubis, ठीक है। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये बोन को इधर से मैं निकालता हूँ, फीमर, इसको मैं निकालता हूँ फिलहाल के लिए। नाउ दीज थ्री बोन्स दे फ्यूज एंड दे फॉर्म अ वेरी ब्यूटिफुल डीप कैविटी। लेट मी, इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ता हूँ अभी। It forms a deep cavity, absolutely. This is that cavity in which the head of the femur attaches, ठीक है, and this cavity is called as acetabulum. The cavity is called as acetabulum. Now acetabulum is the cavity for the attachment of your femur, ठीक है। It is again a ball and socket joint which is associated with the movement, flexible movement of your legs, ठीक है। जो भी आपकी स्प्लिट मूवमेंट्स है, फॉरवर्ड मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर लेग्स, ऑल ऑफ दैट इज एसोसिएटेड विद दिस ऑब्ट्यूरेटर, माय मिस्टेक, एसिटाब्यूलम, ठीक है, एसिटाब्यूलम। नाउ लुक एट दिस एसिटाब्यूलम। अब एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि एसिटाब्यूलम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, ठीक है,
only ilium and ischium, only ischium and pubis, only only ilium and pubis, ठीक है, और all the three bones. So now let's try to locate it कि ये तीन किसके फ्यूजन से बना है. So technically obturator technically acetabulum जो है that is formed by the fusion of all the three bones. ठीक है, देखते हैं कि हम कौन सा बोन यहाँ पे बनने के लिए मतलब एसिटाब्यूलम बनाने के लिए टेक पार्ट एसोसिएट करता है. ठीक है, दिस इज योर इलियम. सो देखो इलियम का इतना छोटा सा हिस्सा यहाँ पे पार्ट ले रहा है. दिस इज द प्यूबिस का इतना छोटा हिस्सा पार्ट ले रहा है. दिस इज द इस्चियम का इतना थोड़ा पार्ट ले रहा है. राइट. सो इन अदर वर्ड्स टेक्निकली इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन दैट इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ऑल द थ्री बोन्स आर एसोसिएटेड, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ acetabulum which is the cavity for the head of the femur. Is that very clear? So that accounts for your pelvic cavity. अब बात करते हैं बाकी को. अब हम लाते हैं फीमर को वापस अपने जगह पे. ठीक है. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिकली, आई टोल्ड यू ये कैविटी जो है बीच की जो आपको कैविटी दिख रही है, ये कैविटी इज योर पेल्विक कैविटी एंड इट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन द मेल्स. ठीक है. दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ये आपको दिख रहा है. और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज कंपेरेटिवली ओवल शेप का ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आपको दिख रहा है यहाँ पे. देखो this is the oval shaped obturator foramen which is a characteristic feature of a male skeleton. Right. Again और क्या क्या changes है with respect to the male skeleton? Let's go back and see that. Pelvic cavity जो pelvic bones है they are not very wide enough. Obturator foramen is oval. Characteristically the कॉकिक्स की जो एंगल है, कॉकिक्स की एंगल इज एंटीरियरली, ये एंटीरियर की तरफ है. कॉकिक्स इज बेंड एंटीरियरली वेयरएज फीमेल में इट इज नियरली स्ट्रेट. ठीक है. सो मेल में ये एंटीरियरली बेंड है, फीमेल में ये थोड़ा सा स्ट्रेट होगा. अभी वो पूरा स्ट्रेट नहीं हो सकता बिकॉज टेल बोन ही अपना थोड़ा सा कर्व्ड है. बट कर्वेचर और द पोजीशन इज एंटीरियरली प्लेस्ड फॉर मेल्स एंड इट इज स्ट्रेट, और पोस्टीरियरली और इट इज स्ट्रेट बोल सकते हो फॉर फीमेल. इज दैट वेरी क्लियर? सो ये दो डिफरेंसेस हमको यहाँ पे से समझ गया. आई विल ऑल्सो शो यू अ फीमेल स्केलेटन टू कंपेयर. ऑल राइट, घूमते हैं अभी हम जाते हैं अपने. दिस वॉज विद रिस्पेक्ट टू योर with your innominate bones forming the pelvic girdle. ठीक है. Now coming back to the largest and longest and the strongest bone of your body, that is femur. ठीक है. अभी मैं बाकी को फेड करता हूँ. Look at this, how firmly and how beautifully this particular head of the femur is attaching to the acetabular cavity or acetabulum. ठीक है. अभी के लिए मैं बाकी लोगों को भी हाइड कर देता हूँ. लेट्स ट्राई एंड लेबल दीज डायग्राम. लेट्स ट्राई एंड लेबल कि इसमें क्या क्या पार्ट्स है. ठीक है. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. तो ये क्या है बेटा? ये आपका फीमर है. फीमर विच इज द थाई बोन and femur is the strongest and longest bone. parts इतने ज़्यादा है नहीं इसमें बेटा. ये जो है that is the head of the femur, this is the neck of the femur. ठीक है. अभी ये आपको एक थोड़ा सा ऐसे, again there is a bump like structure and this bump like structure is called as ग्रेटर ट्रोकैंथर. देखो ह्यूमरस में ट्यूबरकल था, यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकैंथर है. ट्रोकैंथर. एंड यहाँ पे एक छोटा सा और एक एक्सटेंशन है विच इज कॉल्ड एज लेसर ट्रोकैंथर. ठीक है. greater trochanter, lesser trochanter. This is again referred to as the shaft या diaphysis
of the femur. ठीक है, all right, these are referred to as the condyles, goal protuberance. ठीक है, so condyles of the femur, this condyles of the femur will fix themselves on the tibia. Is that right? So now let us, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं है बेटा याद रखने के लिए, इसको पहले सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड व्यू देम. ठीक है, हेड ऑफ द फीमर, ये देखो, ये आपको दिख रहा है हेड ऑफ द फीमर. ये आपका ग्रेटर ट्रोकैंथर है. ठीक है, ये आपका लेसर ट्रोकैंथर है. ठीक है, एंड लुक एट दिस कॉन्डाइल. ये गोल, ऐसे गोल स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, लुक एट दिस femoral condyle. ये आपको दिख रहा है आर्टिकुलेटिंग surfaces of the femoral condyle. So these are your condyles. ठीक है बेटा, तो फीमर में इतना ही आपको याद रखना है. लेट्स गो बैक एंड सी दी अदर बोन्स ऑल्सो. राइट, सो दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू फीमर. The next bone is patella or the kneecap. Now patella is a sesamoid bone which is associated with the by the ossification of a tendon of the quadriceps femoris. Quadriceps femoris ये muscle है which is also called as rectus femoris. ये यहाँ पे आता है बेटा आपके. ओके, यहाँ पे एक मसल आता है स्ट्रेट मसल, और इस मसल के ऑसिफिकेशन, इस मसल के टेंडन के ऑसिफिकेशन से ये वाला बोन बना हुआ है. ठीक है, सो एंड टू द टीबिया देयर इज अगेन अ पटेलर लिगामेंट विच इज अटैच्ड. दिस इज रेफर्ड टू एज द पटेलर लिगामेंट. ठीक है, सो स्मॉल सीसेम शेप्ड बोन, इसलिए इसको सेस्मोइड बोन बोला है बेटा. ओके, गोइंग बैक टू दी शैंक बोन्स या लेग्स, लोअर लेग्स के जो बोन्स है, दिस इज दी टीबिया जो थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, एंड दिस इज दी फिब्यूला. ठीक है, टीबिया एंड फिब्यूला. फिब्यूला इज स्लेंडर एंड फिब्यूला इज लैटरली प्रेजेंट, पीछे की तरफ है. अगर आप लेग के सामने की तरफ देखोगे, सो अ स्मॉल एजी सरफेस आपको दिखता है आपके पैर पे. दिस इज दैट एजी सरफेस. ठीक है, जो आप टच कर पा रहे हो, दैट इज दी टीबियल बोन. एंड जो पीछे से एक एंकल की तरफ आपको एक बोन दिखता है, दिस इज दी फिब्यूला. ठीक है, फिब्यूला जो है बेटा, फिब्यूला इज लैटरली प्रेजेंट. इट इज लैटरली एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट, लैटरली एंड पोस्टीरियरली. ठीक है, वेर एज योर टीबिया, इसको थोड़ा सा एंगल को घुमाते हैं. टीबिया इज मीडियली and anteriorly present. Tibia is medially and anteriorly present. Cool. So tibia में और fibula में भी you don't have any particular processes, great processes to remember. अच्छी बात है, नहीं है, घूम फिर कर घूमते हैं और अपन जाते हैं अपने टार्सल्स के पास, जो अपने हील बोन्स है या एंकल बोन्स है. ठीक है, तो टीबिया और फिब्यूला में आपको इतना ही याद रखना है. फिब्यूला कंपैरेटिवली जो है, फिब्यूला इज थिनर एंड टीबिया इज कंपैरेटिवली थिकर बोन, देखकर ही पता चलता है. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, फिब्यूला इज शॉर्टर देन दी टीबिया. ये तो देखो, इससे लंबा सिर्फ दिख रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मगर अगर आप लेंथ देखोगे तो फिब्यूला इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दी टीबिया एंड इट इज डीपली प्रेजेंट. Right, let's come back to the ankle bones and the heel bones. So the ankle bones or the heel bones are referred to as the tarsals. So tarsals bhi, there are 7 in each legs. The names are also very 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 simple. ठीक है, लेबल करेंगे हम थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं क्या है. ओके, लेबल करते हैं और फिर देखेंगे कि ये क्या है.
Right, let's go back and see this tarsal, which you can see. This tarsal is tarsal number 1, and that tarsal is called as talus. Talus. Talus is associated with the formation of the ankle. ठीक है, talus. दूसरा जो है, this is the calcaneum, largest. ये वाला जो है, that is the calcaneum. Calcaneum forms the heel of the leg. It forms the heel of the leg. Calcaneum is the largest tarsal. Again, ये सब extra चीजें हैं बेटा, ठीक है. Calcaneum. This particular bone is cuboid. Cuboid. So अपन ने बात किया talus, जो टिबिया से अटैच्ड है, ठीक है. talus and talus is attached with tibia and fibula, ठीक है. calcaneum is the heel bone, उसके साथ अटैच्ड है cuboid, and बाकी के जो 3 bones है they are cuneiform, cuneiform, cuneiform. So this was your calcaneum, this is cuboid, and ये 1 2 3, ये तीनों जो है they are called as cuneiform, cuneiform, cuneiform. So let's quickly label these. I am trying to take a perfect angle with respect to the bones, and then we will see okay, I hope this angle should be perfect. This angle should be perfect. Okay, let's go ahead and see the others also. इसको पहले हम एक चेक, तो लेट्स गो अहेड एंड लेबल देम. तो पहला वाला है जिसको हम बोलेंगे टैलस. ये आपका हील वाला है, तो जिसको हम बोलेंगे कैल्सेनियम. कैल्सेनियम. calcaneum, which is forming the heel. છે તમારું cuboid, ठीक है. अच्छा, हम लोग एक और यहाँ पे भूल गए. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, this is cuboid. This one is this one. Can you see this? 1 second. Okay, I'm labeling it here. We forgot that to label them. This is navicular. Navicular. Okay, so navicular. And बाकी के जो है 1, 2 and 3, they are called as, these 3 are called as cuneiform. Cuneiform. So talus, calcaneum, cuboid. talus, calcaneum ऐसे ऑर्डर में याद करेंगे बेटा हम. talus, calcaneum, navicular थर्ड, cuboid फोर्थ, cuneiform, cuneiform, cuneiform. तो इसको आप याद कैसे करोगे? इट इज़ वेरी सिंपल. अगेन यहाँ पे हम थोड़ा तो मराठी बात करेंगे. कार्पल्स के लिए हमने स्पेनिश बात किया था ना. ट्राहा का क्या था वो, ट्राट्रा काहा स्कालू ट्राइपिस, है ना. तो हमने कार्पल्स के लिए ये बात किया था. तो टार्सल्स के हम थोड़ा सा मराठी बात करेंगे. सो तेस आहे टाकाना. सो टाकाना, कुक 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 कुक. सो याद करना बहुत ईजी है. तो इट इज टाकाना कुक 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 कुक. मतलब इन अदर वर्ड्स, आपके सामने बहुत सारी मुर्गियाँ कुकड़ों कुक कर रही है, तो उसको कुछ तो डालो ना, कुछ तो टाकाना. Again, I know it is absolutely foolish, right? But these things help you in your examination also.
Is that right? So that is all with your tarsals, 7 tarsals, talus, calcaneum. एग्जाम में क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा हील फॉर्म करता है, तो कैल्सेनियम हील फॉर्म करता है. कौन सा डायरेक्टली अटैच्ड है विद द टिबिया एंड फिब्यूला, टैलस डायरेक्टली अटैच्ड है विद द टिबिया एंड फिब्यूला. बाकी गए तेल लगाने. ठीक है, तो इसे भी हम सेव कर लेते हैं अभी के लिए. So I am not technically going back and seeing the writing it in the notepad because that doesn't make any particular sense now. Is that right? तो देख लेते, ये देखो, ये navicular tarsal है. ठीक है, तो टाका ना कुक्कू कुक्कू, तो ये सब तुम्हारे proximal थे, and all of these are the distal one. These are the distal one. ठीक है, और ये जो है that is your, these are your metatarsals 5. ये आपके 5 metatarsals है, metatarsals, and these are your 14 phalanges. Very clear? ठीक है, so that accounts for your complete set of your lower limbs. ठीक है, complete set of your lower limbs एक जगह पे हमने देख लिया. Now characteristically we'll try to figure out the differences between the male and the female skeleton. ठीक है, at the same time we'll see we'll try to compare both the skeletal system. Okay, I will first write down the points and then we will try to compare the structures. ठीक है, so सबसे पहले यहाँ पे पहले हम points लिखते हैं. Let's go back to the notepad. All right, so I'm putting up the characteristics here, and then we will write down the differences. Then we'll write down the differences between the male and the female skeleton. ठीक है, so let's write down characters. Okay, so मेल को हम ब्लू में लिखते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा ही ओवर कर रहा हूँ ना, और फीमेल को हम लिखते हैं रेड से. कैरेक्टर को हम थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं. जाने दो ना, बकवास कर रहा हूँ ना. हाउ डज इट मैटर एनी विच वेज, राइट? सो कैरेक्टर, सबसे पहले आप मेल और फीमेल स्केलेटन को कंपेयर कैसे करोगे? बिकॉज वी नो आफ्टर प्यूबर्टी द पेक्टोरल गर्डल ऑफ द मेल बिकम्स ब्रॉडर टू गेट अ वी शेप्ड फिजिक, एंड द पेल्विक गर्डल ऑफ द फीमेल बिकम्स लार्जर टू गेट अ कर्वेचर विद रिस्पेक्ट टू द हिप्स, राइट? सो पहला मेरा कैरेक्टर है होगा पेल्विक, ओ माई मिस्टेक, सॉरी. पहला मेरा कैरेक्टर होगा पेक्टोरल गर्डल. ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, पछी पेल्विक गर्डल. ठीक है, पछी क्लवाइकल. उसके बाद लेट्स टेक अप पेल्विक कैविटी. Then we'll take up diameter of the acetabulum. सबके लिए रीजन है diameter of the acetabulum. Then we'll take up obturator foramen. स्पेलिंग गलत થઈ गई. obturator foramen. Then we'll take up sacrum, and then comparatively we'll take up coccyx. So इससे हम compare करेंगे, and then I will show it to you in real time, right? So सबसे पहले मेल में कैसे होगा, मेल में लिखते हैं. ठीक है, मेल के बाद हम लोग फीमेल में लिखेंगे. मैंने बोला ना कि थोड़ा सा शोबाजी करते हैं इधर थोड़ा सा, है ना. मेल को हम लिखेंगे सारे मेल ब्लू कलर में लिखेंगे. तो मेल का पेक्टोरल गर्डल कैसा होगा बेटा? मेल का पेक्टोरल गर्डल होगा वाइड. समझी क्यों? पेल्विक गर्डल वाइड चाहिए क्या,
है ना। तो जिसको भी वाइड चाहिए वो वाइड लिख सकता है, जो भी मेल को वाइड पेल्विक गर्डल चाहिए, बट पेल्विक गर्डल हियर इज कंपेरेटिवली नैरोवर, है ना। फीमेल में वो वाइड क्यों होता है, बिकॉज इट इज एन अडेप्टेशन कंपेरेटिवली फॉर easy passage of the child during the delivery, ठीक है। clavicle is less bent और less S shaped। फीमेल की जो क्लवाइकल होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेंट होती है, ज़्यादा एस शेप होती है, एंड दैट इज़ वाई फीमेल की जो क्लवाइकल है उसको ब्यूटी बोन कहते हैं। मेल को ब्यूटी बोन नहीं कहते हैं। फीमेल में एनी विच वेज ये आपको आपका क्लवाइकल दिखता है टेक्निकली, बिकॉज इट इज़ मोर कर्व्ड, राइट। जो भी फीमेल अपना कॉलर बोन या ब्यूटी बोन नहीं देख पा रही है, दैट मीन्स देर इज अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ फैट ऑन योर बॉडी। प्लीज ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट। कूल। तो इट इज लेस एस शेप्ड। पेल्विक कैविटी जो है, पेल्विस जो है, दैट इज पेल्विस इज कंपेरेटिवली स्मॉलर, क्योंकि मेल को बच्चे पैदा नहीं करने, ठीक है। एसिटाब्यूलम की जो डायमीटर है, कंपेरेटिवली एसिटाब्यूलम की जो डायमीटर है, द डायमीटर इज कंपेरेटिवली लेस देन 5 सेंटीमीटर। नहीं, मिस्टेक, गलती हो गई बेटा, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। मेल में इट इज कंपेरेटिवली ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है मेल में, इट इज ओवल शेप्ड, ठीक है। सेक्रम इज कंपेरेटिवली लार्जर इन द मेल, sacrum is larger in the male, and coccyx, as I told you, it is anteriorly placed, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग फीमेल का लाल कलर में, ठीक है। फीमेल की पेक्टोरल गर्डल इज कंपेरेटिवली नैरो, बट देर आर अ लॉट ऑफ वेट लिफ्टर फीमेल्स जिनकी पेक्टोरल गर्डल वाइड होती है। दैट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग, एक्सेसिव नहीं बोलूँगा, बट अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो, इफ़ यू आर लिफ्टिंग अप हैवी वेट्स, ठीक है, योर बॉडी सिंथेसाइजेस टेस्टोस्टेरॉन इन अ ग्रेटर अमाउंट। सो अगर जो वेट लिफ्टर फीमेल्स होती है उनकी ब्रॉडर चेस्ट होती है फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, बिकॉज दैट इज वन एट्रीब्यूट, right? It is an appealing feature for their presentation on that level, ठीक है। pelvic girdle जो है, pelvic girdle is comparatively wider. Again, this is an adaptation for easy passage of the child, ठीक है। एक curvature आता है with respect to the pelvic girdle, ठीक है। clavicle is more bent, it is more S shaped, hence it is called as the beauty bone, ठीक है। pelvic is comparatively even more wider, ठीक है, wider और larger, pelvic is wider और larger। acetabulum की जो diameter है, that is less than 5 centimeter। obturator foramen is triangular, sacrum is comparatively smaller, okay, and the coccyx is straight, all right। So let's first try and compare all the male skeletal system, and then quickly I'll show you the female skeletal system। Cool। So let's go back to the male skeletal system। पूरे जो पॉइंटर्स हमने लिखे थे, सबसे पहला पॉइंटर था हमारा ब्रॉड पेक्टोरल गर्डल एंड शॉर्ट एब्सोल्युटली नैरो पेल्विक गर्डल, ठीक है। एक प्रॉपर वी शेप्ड फिजिक आती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर structure, because of this particular adaptability with respect to your bones, ठीक है। दूसरा जो हमने बात किया था clavicle, look at this clavicle now। clavicle, one second,
नाच रहा है ना कंकाल आदमी। देखते हैं क्लवाइकल को, बाकी सबको फेड करके देखते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस क्लवाइकल ऑन दैट। ओहो, ठीक है। क्लवाइकल इज कैरेक्टरिस्टिकली इट इज इतना ही एस शेप्ड है। और फीमेल में देखोगे ना, फीमेल में थोड़ा सा और ब्रॉडली एस शेप होगा। ठीक है, आई शो इट टू यू हाउ डज इट लुक इन द फीमेल। सो फीमेल में ये ऐसा दिखेगा बेटा, मतलब इतना भी कर्व नहीं होगा ऑन दैट लेवल, ठीक है, बट फीमेल में इट इज दिस वे। सो ये सामने की तरफ थोड़ा सा दिख के आता है, इसलिए फीमेल में इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऑल राइट, विद रिस्पेक्ट टू क्लवाइकल हो गया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था दैट इज पेल्विस। पेल्विस के बारे में बार बार सेम चीज़ नहीं बताता, ठीक है, बार बार अपन वही चीज़ें नहीं बात करेंगे, ठीक है। पेल्विस इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। उसके बाद ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, आई हैव टोल्ड यू दैट प्लीज व्यू द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, तभी मैंने आपको बताया था दैट इट इज एन ओवल शेप्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। सेक्रम इज कंपेरेटिवली लार्जर, दिख रहा है आपको सेक्रम लार्ज है, ओके, सेक्रम इज कंपेरेटिवली लार्जर, लुक एट द साइज। एंड कॉकिक्स का स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा सा कॉकिक्स का स्ट्रक्चर एंटीरियरली प्रेजेंट है, एंटीरियरली बेंट है। लेट्स नाउ गो बैक एंड गो टू अ फीमेल स्केलेटन। अब पता नहीं, फीमेल स्केलेटन भी एक स्केलेटल सिस्टम मेरे को मिला है, सो लेट्स प्रॉपरली व्यू इट। देखो बहुत कैरेक्टरिस्टिकली यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। तो these are the pointers, these are the brownie points which will help you to identify a male and a female skeleton, ठीक है। Let's go back and see this, compare this, look at this narrow pelvic pectoral girdle, ठीक है, broader, देखो कैसा मस्त ऐसे proper figure is again it's a it is not a sane word to be used, but कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो, ठीक है। सो कंपेरेटिवली पेल्विक गर्डल जो है इट इज कंपेरेटिवली वाइडर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फीमेल, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेल, माई मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्लवाइकल दिखाता हूँ, ओह 1 सेकेंड, ओके, नाउ लुक एट दिस, लुक एट द क्लवाइकल। ये थोड़ा सा अगर आप मेल को कंपेयर करोगे और फीमेल को कंपेयर करोगे तो फीमेल का क्लवाइकल इज इवन मोर एस शेप। इसी को हम थोड़ा सा मेल के साथ कंपेयर करते हैं, ये देखो, सो मेल का देखो कर्वेचर इतना ही है, ठीक है, एंड फीमेल का बोन का कर्वेचर देखो, इट इज, फीमेल के बोन का कर्वेचर देखो कैसा है, ठीक है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द क्लवाइकल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्यूटी बोन इन द फीमेल, ओके। नाउ लुक एट दिस पेल्विक कैविटी, इट इज कंपेरेटिवली वाइडर देन द मेल, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज ट्रायंगुलर शेप, मतलब ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप के है, ठीक है। एंड द लास्ट पर्टिकुलर पार्ट दैट इज, लुक एट द सेक्रम, इट इज सच टाइनी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेल, ठीक है। द सेक्रम इज कंपेरेटिवली टाइनी, ये देखो कितना छोटा है कंपेरेटिवली विद द मेल। एंड ऑल्सो लुक एट द कॉकिक्स, कॉकिक्स इतना ज़्यादा बेंट नहीं है, सो द कॉकिक्स इज कंपेरेटिवली स्ट्रेट। वेरएज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि द सेक्रम इज वाइडर एंड द कॉकिक्स इज बेंट, करेक्ट, और यहाँ पे देखो तो सेक्रम इज कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड इट इज स्ट्रेट, ठीक है बेटा। ये आपका this is the pubic symphysis, very characteristically you can see, right? So that is the major differences between a male and a female skeleton. दिखने में आपको मेल और फीमेल skeleton ऑलमोस्ट एक जैसे दिखेंगे,
but if you are given a skeleton to identify what is it a male one or is it a female one, it is very unlikely that you will get such a question. Okay, but let us assume that you might get a question. So on that particular point you will have to check these brownie points, these distinguishing points, to identify the difference. Is that right? So that ends up with our today's class with lower limbs. So we have successfully completed the entire session with respect to appendicular skeleton. I will take up one more class for completing the movement. Okay, the completing the different type of joints. ठीक है. So एंड अ स्मॉल एक्स्ट्रा टॉपिक जो हम लोग, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैंने हर क्लास में बच्चों को बताया था. ठीक है, इट इज़ ओमिटेड, तो बट एज एन एक्स्ट्रा टॉपिक वी विल स्टडी दिस, दैट इज़ द लीवर सिस्टम. इज दैट राइट? सो देयर आई रेस्ट माई क्लास हियर. Thank you so much for watching. Any particular doubts with respect to these structures, or any particular extra doubts if you have got, please share it on Classroom. Do not create a mess on the